students, how are you all? Class 7. Hopefully you are great. I hope you all have enjoyed your summer vacations and hopefully you all have done your work, holiday homework, assignments properly. But few of you have not done and not given me your file. Let it be. Now let's start our today's chapter from the Midnight Oil, and hopefully I believe that you all have purchased your books. So now let's start. Open page number 10, that is chapter 2, lesson 2, Kabuliwala, and it is 10 July today. So let's start. Yes. Basically, it's a story about a small girl whose name is Minnie. She has one friend whose name is Kabuliwala, and surprise na how a little girl, a young girl, can be a friend of a man. Let's find out what's interesting in this story. Let's start. Just keep in mind, when I am teaching you, just open your book, take pencil in your hand and mark the sentences or words which I'll make you mark. And also when I'll give you meaning of the word, just mark the word in your book with pencil and write the meaning of that word on above the word. Now let's start. One morning, as I had just started writing the 17th chapter of my novel. One morning, as I had started. Who refers to I here? I refers to here the author. And who is author here? Rabindranath Tagore. You can see on the last page of this chapter. Rabindranath Tagore is an author of this chapter, Kabuliwala. एक्चुअली ही इज़ अ नॉवलिस्ट, मतलब वो नॉवेल्स लिखते हैं. नॉवल मीन बेसिकली बहुत सारी स्टोरीज़ को मिला के एक पूरी नॉवल बनती है. एंड उससे ये एक चैप्टर है, एक काबुलिवाला. सो एक दिन वो अपना 17 चैप्टर लिख रहे थे, मतलब मैं अब बोल रही हूँ एज एन ऑथर, राइट. मैं अपना नॉवल का 17 चैप्टर लिख रही थी या लिख रहा था. मिनी, माई 5-year-old डॉटर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी, छोटी सी बेटी 5 years old की, वॉकड इनटू द रूम एंड बिगेन. वो रूम में आई और बोली, सी दैट, भोला वॉज सेइंग दैट व्हेन एलिफेंट्स लिफ्ट वाटर विद देयर ट्रंक्स एंड स्प्रे इट फ्रॉम द स्काई इट रेन्स. वो आई रूम में और उसने अपने पापा से कहा, पापा देखो भोला कह रहा है, समवन इज there. Bhola is one person, or maybe her brother or friend. She was saying, Bhola मुझे कह रहा था कि जो elephants होते हैं ना, वो अपनी trunks, you know what do you mean by trunk? अपनी trunk में पानी लिफ्ट करते हैं, पानी लेते हैं और उसके बाद जब वो स्प्रे करते हैं आसमान में, स्काई की तरफ, तो उससे बारिश होती है. How funny is this thing ना? She is a little girl, so she just have faith everyone, she just believe everyone. So उसने अपने पापा से ये बात पूछी आके. I said to her, you go and play with Bhola. मैंने उसको बोला, किसने? Who says this? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अभी तुम जाओ और भोला के साथ खेलो. I have some work now. मेरे पास कुछ काम है करने के लिए. At this, she flopped beside the writing table, close to my feet, and began to play a game of knick-knack with her hands and knees. See, जब उसके फादर ने उसको बोला कि जाओ यहाँ से और अभी मुझे कुछ काम करना है, तो ये बात सुन के उसने मुंह फुला लिया. छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, मतलब लाइक अपसेट हो गई थोड़ी. तो वहीं पे जहाँ पे राइटिंग टेबल मीन्स एक टेबल पे अपनी राइटिंग लिख रहे थे, नॉवल लिख रहे थे, चेयर पे बैठ के वो अपने टेबल पे वर्क कर रहे थे. तो वहीं पे टेबल के पास उनके पैरों के नीचे, उनके टेबल के साइड में पैरों के पास बिल्कुल वो ऐसे लेट गई थी. फ्लॉप मीन्स ले डाउन एंड फेल्ट अपसेट और ऑफेंडेड, मतलब नीचे लेट गई थी.
and began to play a game of knick-knack with her hands and knees. अपने पैरों से और हाथों से कुछ ऐसे ही करने लगी, खेलने लगी. Rapidly chanting a nursery rhyme, और बार-बार कुछ अपनी nursery rhymes गा रही थी, बोल रही थी. Stopping her game abruptly. अचानक उसने अपना गेम रोका. Abruptly means suddenly, mark it. Minnie ran to the window which overlooked the main road. मिनी फटाफट से विंडो की तरफ भागी जो मेन रोड की तरफ है, मतलब जहाँ से मेन रोड दिखाई दे पड़ती है. एंड बिगैन कॉलिंग आउट एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, काबुली वाला, ओ काबुली वाला. सॉरी माय थ्रोट इज नॉट. वो विंडो के पास गई और उसने बोला काबुली वाला को देखकर, काबुली वाला, ओ काबुली वाला. जस्ट मार्क दिस लाइंस फॉर हु सेड टू हूम. A tall, shabbily clothed street vendor, मतलब बहुत लंबा सा. shabbily means old, पुराने कपड़े पहने हुए. एक street vendor means जो गली में अपना रेड़ा जिसे बोलते हैं उस पर लेके जो कुछ सामान देते हैं ना, या रेड़ा ना भी बोलो, जो street vendor होते हैं मतलब seller, जो street में गली में कुछ भी सेल करने आते हैं. With a turban on his head, अपने हेड पे उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, turban. On a bag over his shoulder and a few boxes of dry grapes in his hands. मतलब मार्क दिस ऑल्सो, ये आपका डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं हम. डिस्क्राइब काबुली वाला कि वो बहुत ही ओल्ड कपड़ों में था और स्ट्रीट वेंडर था. उसके सिर पे एक पगड़ी टाइप था कुछ, उसकी शोल्डर्स पे एक बैग टंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे ड्राई ग्रेप्स थे. उसके हाथ में भी बॉक्सेस, जो उसके हाथ में कुछ बॉक्सेस थे ड्राई ग्रेप्स के. वॉज पासिंग डाउन द स्ट्रीट स्लोली, वो गली से गुजर रहा था. बट The moment the काबुली वाला on hearing Minnie's call, मिनी ने जैसे ही काबुली वाला को बुलाया, turned around with a smile and approached the house. जैसे ही मिनी ने काबुली वाला को बुलाया, काबुली वाला रुका और एकदम से उसने पीछे मुड़ के देखा और वो उस घर की तरफ चलने लगा जहाँ से मिनी की आवाज़ आई थी. She dashed inside and couldn't be found anywhere. What do you mean by dash? Just mark it and write it on the above it. Ran out somewhere in a heavy manner means she dashed. जल्दी से चली गई. वो एकदम से जैसे ही काबुली वाला उसकी तरफ आया तो वो एकदम से भाग के चली गई, अंदर कहीं पे छुप गई. Dash means ran out somewhere in a hurry manner, right? Just note it down. She had this fear that if someone looked through the bow of this bag, she had this fear that if someone looked through the bag of this bag stripping man means, उसको ये डर था कि अगर किसी ने उसकी झोले में, मतलब उसके पास जो बैग था काबुली वाला के पास, उसमें झांक के देखा उस टॉल मैन के हाथ में, several living children like herself would be found in there means, stripping means tall. मतलब उसको डर था कि सपोज वो मेरे पास आया और हमने किसी ने उस बैग में झांक के देखा तो कहीं उसमें से मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे तो नहीं हैं, इसने उस बैग में इतने मेरे जितने बच्चों को तो नहीं कैद किया हुआ है, मतलब पकड़ा तो नहीं हुआ है, इसलिए वो डर रही थी, इसलिए वो एकदम छुप गई जाके. Now come to the next page. Meanwhile, the Kabuliwala stepped into the compound and stood at the door with a smile and salute. तभी काबुली वाला आया उस कंपाउंड में, stood at the door, उसके घर के दरवाजे के पास खड़ा हुआ और बड़े प्यार से स्माइल किया और उसने ऐसे सलाम किया. I bought a few items and soon I was involved in a rambling conversation with him on various topics. मैं कुछ सामान लाया था. Who refers to I here? किसने कही ये बातें? रविंद्रनाथ टैगोर ने, Minnie's father. उन्होंने कहा कि मैं कुछ सामान लेकर आया था और मैं एकदम से उसके साथ, किसके साथ? With him, काबुली वाला के साथ. Rambling means टॉकिंग ऑन रैंडम टॉपिक्स, मतलब एक बात से दूसरी बात पे स्विच कर जाना, फटाफट से कभी कोई बात करने लगे, कभी किसी बारे में, कभी किसी बारे में हम बात करने लगे एक दूसरे से. एंड देन फाइनली एज ही वाज अबाउट टू लीव द हाउस,
He asked, "Sir, where is your little girl?" जैसे ही हम लोग जा ही रहे थे, वो मेरे घर से जाने वाला था, तभी उसने पूछा कि सर आपकी छोटी बेटी कहाँ है, छोटी सी। Mark this also. To break Minnie's false fear, I called her from inside the house. उसको जो ये फेक डर था, मतलब फेक मतलब कि उसको जो ये ऐसे ही बच्चों के दिमाग में होता ना कि झोले बाबा आ गया, मतलब वो मुझे उठा के ले जाएगा, तो ये जो डर था उसके फादर ने उसके डर को हटाने के लिए उसको घर से के अंदर से बुलाया। She came and stood nervously. वो आई लेकिन डर के मारे खड़े होने लगी। Pressing against my body. Obviously छोटे छोटे बच्चे डर की वजह से अपने पेरेंट्स के पास में ऐसे पकड़ के टाइटली खड़े हो जाते हैं ना, तो वैसे ही वो छुप गई वहाँ पे, उनको पकड़ के खड़ी हो गई। And looking suspiciously at the काबुलीवाला and his bag. और डाउटफुली, suspiciously means डाउटफुली, और शक की निगाहों से काबुलीवाला को ऐसे देखने लगी और उसके बैग की तरफ। The काबुलीवाला took out some raisins and apricots from inside the bag and gave it to Minnie. काबुलीवाला ने कुछ रेजिन्स यानी कि आपके ड्राई फ्रूट्स और एप्रिकोट्स कुछ निकाल के अपने बैग में से मिनी को दिए, बट शी रिफ्यूज टू टेक दैम, उसने मना कर दिया उनको लेने के लिए। एंड रिमेन प्रेस्ड अगेंस्ट माई नीज, माई नीज टू रेफर्स टू माई हेयर, रविंद्रनाथ टैगोर, और वो मना करके मेरे पास वैसे ही खड़ी रही। दैट वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी पहली मुलाकात थी। अ फ्यू डेज लेटर एज आई वॉज लिविंग द हाउस इन द मॉर्निंग, कुछ दिन बाद जैसे कि मैं सुबह जा ही रहा था घर से, आई सॉ माई टाइनी डॉटर सिटिंग नेक्स्ट टू द डोर बिसाइड द काबुलीवाला स्पीकिंग नॉन स्टॉप विद हिम। जैसे ही मैं एक दिन सुबह जा रहा था तो मैंने देखा मेरी प्यारी सी बच्ची दरवाजे के पास काबुलीवाला के पास बैठी हुई है और वो दोनों नॉन स्टॉप बातें किए जा रहे हैं। इन हर शॉर्ट 5-year life, Minnie had never found a more intent listener before other than her father. Means भी 5 साल की तो है, इतनी 5 साल की एज में अभी तक मिनी ने कभी किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा, मतलब ऐसे पर्सन को नहीं देखा जो उसकी बात सुनता होगा इतने प्यार से, इतने एक्टिवली जैसे कि उसके फादर सुनते थे। बट दूसरा पर्सन वो था काबुलीवाला जो उसकी सारी बातें ऐसे ध्यान से सुनता था। Look at the picture like this. All right? Quite interesting now. Now come to the next page. Page number 12. I also noticed that she had lots of nuts and raisins with her. मैंने भी नोटिस किया था कि उसके पास बहुत सारे फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल है। Upon discovering this, I asked the काबुलीवाला, why did you give all these to her? ये सब देखने के बाद मैंने काबुलीवाला से पूछा कि तुम उसको ये सब क्यों देते हो? Mark these also for your who said to whom. Please don't do it again. कि दोबारा मत करना। With that, I took out a half rupee coin and gave it to him. उसको ये कहने के बाद मैंने अपने पॉकेट से एक हाफ रुपी कॉइन, मतलब 50 पैसा उसको निकाल कर दे दिए। उस टाइम पे 50 रुपीज़ कॉइन्स ही चलते थे। The काबुलीवाला took the money without any hesitation and put it in his bag. काबुलीवाला ने बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए वो पैसे लेके अपने बैग में रख लिए। On returning home, I found that a full-scale row had broken out over the coin. It means जब मैं घर पहुंचा मुझे आवाज़ आने लगी बहुत ज़्यादा। See, on returning home, I found that a full-scale row means बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी मुझे घर पहुंचते ही बाहर से ही लड़ने की। Argument, when there is an argument between two voices or two persons, जब कुछ आवाज़ें आती हैं दो लोगों के बीच की बात की या लड़ाई की, चिल्लाने की, बोलने की एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं अ फुल स्केल, पूरी जोर शोर से आवाज़ें आ रही थी लड़ाई की। हैड ब्रोकन आउट ओवर द कॉइन, एक कॉइन के पीछे लड़ाई हो रही थी। जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। रो मीन्स an argument raised over two voices, or you can say raised between
Holding the coin in her hand, Minnie's mother asked her in rebuking tone, "Where did you get the coin?" हाथ में वो कॉइन लेके मिनी की मम्मा उससे पूछने लगी गुस्से में, रिब्यूकिंग मीन्स गुस्से में, बहुत डांटते हुए बोलने लगी, पूछा उन्होंने कि ये कॉइन तुम्हें कहाँ से मिला? मिनी रिप्लाइड, द काबुली वाला गेव इट टू मी। मिनी ने कहा काबुली वाला ने मुझे दिया था। ऑलराइट, एंड जस्ट मार्क दीज सेंटेंसेस फॉर योर ट्रू फॉल्स, और यू कैन से हु सेड टू whom, fill in the blanks, राइट। हर मदर चिल्ड, वो बहुत उसे डांटने लगी, उसकी मम्मा। Why did you take it from him? तुमने ये क्यों लिया उससे? मिनी आंसर्ड sobbingly, रोते हुए उसने जवाब दिया, उसने आंसर दिया। sobbingly means weeping with short breaks in the voice, means रोते हुए, क्या लेते हैं ना बच्चे थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो उसको बोलते हुए रोते हुए उसने बोला, I didn't ask for it, मैंने नहीं मांगा था, right? He gave it on his own, उसने खुद दिया था मुझे। I stepped in to rescue Minnie and took her out for a walk. मैं अंदर गया और मैंने उसको बचा लिया। रेस्क्यू मीन्स बचाना। मिनी को बचा लिया और उसको ले गया अपने साथ वॉक पे, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर मिनी स्वागत बोल रहे हैं। I learned that the काबुलीवाला had been visiting Minnie almost daily. मुझे पता लगा कि काबुलीवाला ऑलमोस्ट रोज आता था मिनी से मिलने, and by offering her pistachio, that is nuts, he had already won a large part of the girl's childish heart. Just be careful with this pronunciation. It's pistachio means almost daily काबुली वाला आता था मिनी से मिलने और उसको पिस्ताशियो यानी कि नट्स देकर उसका दिल ऑलरेडी जीत चुका था। The two friends had a few phrases and jokes which were repeated in their conversations. दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे ऑब्वियसली, एंड दोनों बहुत बातें करते थे, कुछ छोटी बड़ी बातें करते थे, जोक्स करते थे, एक दूसरे बहुत मस्ती करते थे। द मोमेंट शी सॉ रहमत, जस्ट मार्क दिस ऑल्सो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, फुल नेम ऑफ काबुली वाला वॉज रहमत। जैसे ही वो मिनी रहमत को यानी कि काबुली वाला को देखती थी, मिनी वुड आस्क विद द हार्टी लाफ, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, व्हाट इज इन योर सैक? सैक मीन्स बैग, दैट झोला, राइट। मिनी अपने बड़े खुश दिल से, बड़े खुश होके बोलती थी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, मस्ती के मूड में ऐसे बोलती थी, तुम्हारे बैग में क्या है? रहमत वुड रोर, हाथी, संस्कृत में बोलते हैं ना हाथी, तो वो उसको मस्ती में बोलता था, हाथी है मेरे बैग में। द जोक वॉज दैट द मैन हैड एन एलिफेंट इन हिज सैक। ऑलराइट, आई हैव टोल्ड यू। दिस कॉज्ड द टू फ्रेंड्स टू डबल अप विद लाफ्टर। इससे क्या होता था, दोनों की जोक्स इतने मतलब हो जाते थे, इतनी मस्ती करते थे कि दोनों की जो खुशी थी, मतलब जो वो मतलब नॉट इन कंट्रोल, मतलब वो इतना खुश रहते थे मस्ती से, इतना हंसने लगती थी मिनी, अपने उनके जो यू नो मस्ती थी वो डबल हो जाती थी, चेयर अप मूवमेंट हो जाता था। एंड द साइड ऑफ दैट इनोसेंट जॉय बिटवीन अ लिटिल गर्ल एंड अ ग्रोन मैन यूज्ड टू मूव मी डीपली। और ये इतना प्यारा सा मोमेंट देख के मतलब मन भर जाता था, मतलब मन खुश हो जाता था कि एक छोटी सी बच्ची और एक काबुली वाला एक मैन, इतना ग्रोन अप मैन, उसके साथ उनकी दोस्ती देख के मन खुश हो जाता था। Another routine exchange between the two was, Miss Missy, you should never go to the in-laws. Means अब next time जब बात हुई उनकी वो ये, Missy, you should never go to your in-laws. Means who said this? काबुली वाला said this to Minnie. Just mark it. उसने कहा मिसी, मिसी को हम वैसे मिस बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने मिसी यूज़ किया है। मिस बिकॉज अनमैरिड है तो मिस बोलते हैं, जैसे कि मैं मिस श्रुति गोयल मैम। सो यहाँ पे मिसी, यू शुड नेवर गो टू योर इन लॉज, मतलब तुम कभी अपने इन लॉज की घर मत जाना। बंगाली गर्ल्स वर कॉमनली फैमिलियर विद द टर्म इन लॉज प्रैक्टिकली सिंस बर्थ। बंगाल में रहते थे क्योंकि वो लोग, तो बंगाली गर्ल्स को ये पहले से पता होता था बचपन से ही कि उनके बाद कि इन लॉज का मतलब क्या होता है। बट वी चोज नॉट टू लोड आवर डॉटर्स माइंड विद सच थॉट्स एट अ टेंडर एज। मीन्स मतलब वो बोल रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ऑथर बोल रहे हैं कि बट हमने अपनी बेटी को मतलब नहीं बताया था इन लॉज का मतलब, हमने उसका ब्रेन नहीं सोचा कि उसको इतनी छोटी सी एज में हम बता दें उसके ब्रेन में प्रेशर या कुछ सोचने वाली चीज़ ये इतनी सी यंग एज में, तो इसलिए हमने नहीं, उसे नहीं पता था।
That was why Minnie could never fully understand रहमत's advice. इसीलिए ये सब सुनने के बाद भी रहमत से यानी कि काबुली वाला से जब उसने कहा एडवाइस दी कि मत जाना इन लॉस के यहाँ, तो उसको कुछ समझ नहीं आया. But to keep quiet was contrary to Minnie's nature. Means बट चुप रहना मिनी के लिए तो बहुत अपोजिट हो जाता ना. मिनी के नेचर के लिए कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट. सी मिनी का नेचर था बहुत बोलना, खेलना, चुलबुली सी, बोलने वाली. अब किसी भी बात को सुन के वो चुप कैसे रहती, राइट? तो वो चुप नहीं रही इस बात पे भी. Therefore she would ask, will you go to your in-laws? फिर उसने चुप तो रही नहीं, उसको समझ में भी कुछ नहीं आया था, बट फिर भी उसने भी क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, क्या तुम जाओगे अपने इन-लॉज के? Come to the next page. Making a huge fist with his hand, Rahmat would pretend to punch at his imaginary in-law and say, I will roll up my in-law. अपने हाथ को इस तरह से मस्ती के मूड में, मजाक के मूड में ऐसे अपने रिस्ट को घुमा के रहमत ने ये दिखाया कि वो ऐसे पंच कर रहा है. मिनी की तरफ ऐसे करते हुए कहा, मैं पंच मारूंगा उनको, ठीक है, अपने इन-लॉज को. आई roll up, roll up means पंच मारना, बहुत जोर से, मजाक के में. It's just imaginary. Thinking of the two conditions of the unknown creature called father-in-law, Minnie would burst into laughter. ये सब कंडीशन ये देखकर, जैसे कि उसने कहा कि मैं पंच मारूंगा, तो ये सब देख के वो, और अब उसको फादर इन लॉ का मतलब तो पता नहीं था कि कुछ अमेजनरी अलग सा है ये वर्ड, तो वो हंसने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से, बहुत यू नो पागल की तरह. कई बार हम लाफ्टर में इतना हो जाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं हमें जोक्स, हम लोग हंसने लगते हैं, पेट दर्द हो जाता है, वैसे वो हंसने लगी. Minnie's mother is naturally a timid person. Means उनकी थिंकिंग बहुत ऐसी थी, क्लोज माइंडेड, राइट? बहुत डरी सहमी सी, डरे सहमे रहना कि अगर कोई अनजान मेरी बेटी की सब बात कर रहा है, छोटी सी बच्ची की सब कोई उठा के ले गया, तो हमेशा डरे सहमे रहती थी मिनी की मम्मा. Whenever she hears a slight noise from the street, जब भी उन्हें ज़रा से भी आवाज़ आती थी गली से, स्ट्रीट से, she thinks that everyone in the world is rushing together towards our house. उन्हें लगता था कि सारे इकट्ठे होकर हमारे घर की तरफ आ रहे हैं. After living for so many years in this world, इस दुनिया में इतने साल जीने के बाद भी, she still feared that the world is full of all kinds of horrors, thieves, robbers, drunkards, snakes, strikers, malaria, cockroaches and European soldiers. Mark all these. उनको तब भी लगता था इतने सालों इस दुनिया में रहने के बाद कि आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं, वो डरती थी आज भी कि ये दुनिया पूरी डर से भरी हुई है, ऐसे गंदे मतलब लोगों से भरी हुई है, जैसे कि चोर, रॉबर्स यानी कि डाकू, ड्रंकर्स जो ड्रिंक करते हैं, स्नेक्स, टाइगर्स, सब कुछ एनिमल्स, मलेरिया, बीमारी, कॉकरोचेस, यूरोपियन सोल्जर्स. वो डरी सहमी रहती थी कि कभी किसी से कोई बीमारी हो जाए या कोई उठा के ले जाए, कोई चोरी कर दे, तो इसलिए वो डरती थी कि कोई भी एकदम अचानक कैसे मतलब आवाज़ आती थी बाहर से, तो उन्हें लगता था कि कहीं हमारे घर की तरफ आ रहे हैं सब. तो वो अपनी बेटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती थी कि मिनी बहुत छोटी है, और काबुली वाला और मिनी की फ्रेंडशिप देख के वो बहुत डरने लगी. She was not free of suspicion that about the Kabuli wala Rahmat, and nagged me to keep watchful eye on him. What do you mean by nag? Constantly trouble. You can see this in the glossary below. मतलब उनका जो टेंशन है, उनका जो ये डाउट था, वो भी फ्री नहीं हुआ था. मतलब वो अपने डाउटफुल करती रहती थी, डाउटफुल ही थी काबुली वाला को लेके, और वो मुझे बार बार ट्रबल करती थी, मतलब परेशान करती थी, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर द फादर ऑफ मिनी, कि अपनी नज़र बनाए रखना काबुली वाला पे, राइट? शी वुड से इजंट स्लेव ट्रेड स्टिल इन प्रैक्टिस. मीन्स वो मुझे कहती थी कई बार कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों को मतलब कैद करके ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है? क्योंकि उस टाइम में कई बार लोग किडनैप कर लेते थे और छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके फिर उनसे भीख मंगवाते थे या सड़कों पे कुछ भी काम करवाते थे ज़बरदस्ती. इज इट ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल फॉर अ लिटिल चाइल्ड टू बी किडनैप्ड? क्या ये तुम्हें लगता नहीं कि पॉसिबल हो सकता है कि छोटी सी बच्ची को कोई भी किडनैप करके फिर उससे कुछ भी काम करवा सकता है? आई ट्राई टू मेक लाइट हर सस्पिशंस. मैं कोशिश करता था कि उनके डाउट कुछ कम कर दूँ. हाउएवर माय वाइफ रिमेन सस्पिशियस ऑफ द मैन. बट फिर भी मेरी वाइफ को हमेशा सब पे डाउट रहता था. एवरी ईयर इन जनवरी, नॉट दिस, every year in January or February, Rahmat, a money lender, would go back to his homeland to visit his family. हर साल जनवरी और फरवरी में रहमत एक मनी लेंडर है. रहमत मतलब जो है वो मनी लेंडर भी है, मतलब अपने पैसे कुछ उधार देता था लोगों को. तो फरवरी और जनवरी में वो अपने घर जाता था अपनी फैमिली से मिलने.
He was unusually busy during this period collecting dues from his clients before the trip. अपने घर जाने से पहले वो जो लोगों को उधार दिया करता था पहले से, वो जनवरी फरवरी में उधार सबसे कलेक्ट करके वापस अपने पैसे लेके तब ट्रिप पे यानी कि अपने घर जाया करता था. He had to rush from the house to house and yet he found time to visit me. जबकि उसको इतना भी टाइम नहीं होता था कि वो कुछ भी करे, एक घर से दूसरे घर जाना होता था उसको पैसे कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद कलेक्ट करके पैसे वो अपनी फैमिली से मिलने जाता था. बट उस टाइम पे भी उसको इतना टाइम मिल गया कि वो मिनी से मिलने आता था. टू सी दैट ह्यूज मैन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस इन द डार्क ऑफ द इवनिंग इन हिज बैगी क्लोथ्स एंड यूजुअल सैड वुड क्रिएट अ सडन फियर इन माय माइंड. एक दिन शाम को अंधेरे में इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ था, मतलब कि रहमत बैठा हुआ था मेरे घर के पास. शाम को बैगी क्लोथ मतलब ढीले ढाले पुराने कपड़े पहन के बैठा हुआ था और अपने वही बैग के साथ. मुझे उससे डर लगने लगा क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मेरी बेटी को सच में तो उठा जगह इतनी शाम को ये बंदा मतलब ये पर्सन यहाँ बैठा है मेरी बेटी के पास राइट अंधेरे में. बट द मोमेंट आई सॉ मिनी रशिंग आउट ऑफ द हाउस एंड ग्रीटिंग हर फ्रेंड काबुली वाला ओ काबुली वाला एंड द chums engaging in their familiar bantering and innocent laughter, my heart filled with delight. Means मैंने जब देखा मेरी बेटी बड़ी खुशी से एकदम आई घर के बाहर से, घर के अंदर से भागती हुई और बोलते हुए बड़े प्यार से अपने फ्रेंड को वेलकम करते हुए ओ काबुली वाला वो काबुली वाला. चम्स मीन्स दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स. दोनों क्लोज फ्रेंड्स फिर से अपनी वही पुरानी मस्ती जोक्स एंड ऑल. बैंटरिंग मीन्स जोक्स पुराने वही कॉन्वर्सेशन मतलब करने लगे. एंड उनका ये सब इतनी प्यारी हंसी, ये सब कुछ मतलब जॉयफुल देख के, जॉयनेस देख के, हैप्पीनेस देख के मेरा मन भी खुश हो गया, मेरी टेंशन सारा खत्म हो गया. ऑलराइट, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो एंड टिल देन जस्ट watch my video and study this chapter carefully and you can take your problems from me. So let's not continue today. We will continue it tomorrow. So for today it's enough and wait for my next video. I'll be back with the chapter again tomorrow. Till then keep studying. Take care. Bye bye.